Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing well. Well, yesterday I uploaded an introduction video as to how much I secured in AFCAT exam and other various exams which I did attempt. So thanks for the response which I got. So I'll try my best in order to help you out as to how you can clear and crack this exam, right? So before moving forward, let's understand what the requirement of the exam actually is. Until and unless you don't know the pattern of the exam, you don't know how questions are going to be asked, just reading anything and everything is not going to help. तो बहुत important है हम लोगों को initially that we should know the pattern as to how the exam is going to come. For example, if you have to go into a war, before going into the war you have to understand all the statistics, all the logistics, everything, like what the situation is, everything, then only you can act a certain way. In the same manner, it is very important before going to attempt the exam or getting start preparing it, it is very important that we should know what to study and what the exam is all about. So let's get started. Let's be very clear as to what the kind of question paper you are going to face, right? So let's start. The exam which you are going to give would be AFCAT 1 2022, right? So the exam, you must be knowing that the total marks of exam is going to be 300. Well, sorry for the writing, since I am using this for the very first time, I might be not very fluent and precise in the manner I am writing, so I think you can bear with me here. Sorry for that. So your exam is going to be for 300 marks, okay? These are the marks of the exam, and then you have to attempt 100 questions, right? So 100 into 3 means you have to, so you are going to attempt 100 questions, and per question it is of 3 marks, right? But the catch here is you cannot go there and you can do all the questions अपना guess work करके and all of that, because इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है. So आपको -1 marks मिलेगा for every wrong answer and you are going to get +3 marks for every right answer. So we also have to ensure कि हम ज़्यादा negative marking ना करें. If we have to even do some guess work, that should be intelligent enough that आप बिल्कुल blindedly, you cannot blindly go there and just mark your answers because negative marking is there, and just don't lose marks in negatives, right? So now let's understand step by step. So the exam is divided into 4 parts, right? First is our reasoning and military aptitude. तो पहला हमारा है reasoning और military aptitude. Well, मैं ये जो वीडियो है ये दोनों हिंदी एंड इंग्लिश, इट वुड बी इंग्लिश bilingual बनाऊंगी so that people who would be comfortable in हिंदी can also comfortably watch it, right? तो ये reasoning and military aptitude आएगा. इसके you are going to get 32 questions. After that, the next section is going to be mathematics and you are going to get 18 questions from here. After that, you have your English and you are going to get 25 questions, and then you are going to have your general awareness, which also comprises 25 questions. So these are all 32 plus 18 plus 25 and 25. These are 100 questions. So now what the thing is, like, you would be very worried or like thinking what to read, how to read, like which chapter to read. So don't worry. See, जो आज तक हमने कट ऑफ ऑब्जर्व की है AFCAT एग्जाम में जनरली, वो यार आपकी ना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, मतलब 150 की रेंज से, like it's between 150 and something, somewhere between 150 and 160. तो आपकी 150 से 160 की रेंज में कट ऑफ होती है, कई बार 160 से ऊपर भी जाती है समटाइम्स, बट वो बहुत रेयर होता है. इट मेजरली लाइज बिटवीन 150 एंड 160, राइट? तो इट मीन्स
150 or 160 marks, it means you are doing 50 questions, 52 questions, right? जिससे आपका ये स्कोर आ जाएगा. तो मतलब you have to attempt half the, even if you are going to attempt half of the questions in a very precise manner, even then you can go through this exam very well. A little bit more than half, you will be doing fine. So थोड़ा सा have some trust in what I am saying. I will tell you how I prepared in the next video. I'll also tell you the books which I referred. And मैंने उसके अलावा मैंने कोई और सोर्स रेफर नहीं किया था, कोई ऑनलाइन कोर्स मैंने नहीं खरीदा था. I just did that and it sailed me through. It helped me, right? So अगर हम देखें कि रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, ये दोनों मिला के हमारे 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज टू पार्ट्स इज द क्वेश्चंस आर रिपीटेड वेरी फ्रीक्वेंटली. देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर स्टेप बाय स्टेप. आई टेल यू, एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर ओनली. लाइक चलो अगर हम मानते भी हैं कि इसके 50 क्वेश्चन है, अगर हम मान ले कि एवरेज बच्चे के लिए 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ माने जाए, राइट? कि हाँ 10 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे लेवल के दे देंगे, बट इवन देन 40 क्वेश्चंस आर सच विच कंप्राइजेस इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस. सो जस्ट बी वेरी काम. बस हमें अपना, इवन अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे भी बहुत अच्छा फोकस करेंगे तो आप 40 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजीली गेन कर लेंगे, इवन इफ आपका बहुत ज़्यादा आपने ना पढ़ रखा एंड ऑल दैट. इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट फॉलोइंग दैट गाइडलाइंस एंड गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. उसके बाद यार आपकी इंग्लिश है और जर्नल अवेयरनेस. ओके, तो इवन अगर कोई बंदा रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को ढंग से प्रैक्टिस करे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 40 क्वेश्चंस उनके आराम से यहाँ से निकल जाएंगे. सो ईजीली आप यहाँ से 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं. प्लस इंग्लिश की अगर बात करें, येस इंग्लिश इज अ लिटिल bit tough in the sense that synonyms, antonyms वो थोड़े से डाइसी आ जाते हैं एकदम, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. बट देयर आर सर्टेन सेक्शंस इन इंग्लिश एज वेल कि एक नॉर्मल अगर कोई इंग्लिश बंदा जानता है, इवन दैट पर्सन विद लाइक एवरेज इंग्लिश कैन अटेम्प्ट लाइक 10 क्वेश्चंस तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं. एंड जर्नल अवेयरनेस में भी देयर आर सर्टेन टॉपिक्स. इफ यू विल अडेयर टू इट, स्टिक टू it, you will definitely go through, I'm saying minimum 10 questions आप एक basic knowledge के साथ यहाँ भी attempt कर लोगे अगर आप उसको उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करोगे. सो ओके फाइन, चलो हम बारी बारी बात करते हैं एक एक टॉपिक की. सो लेट्स गो टू रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड. सो हियर इज द फर्स्ट टॉपिक, राइट? तो ये हमारी होगी एनालॉजी. तो एनालॉजी क्या होती है यार? देखो टॉपिक वाइज देखो, जस्ट डू दीज टॉपिक्स. हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? इट्स लाइक 6 टॉपिक्स हैव बीन रिटन हियर. ये 6 टॉपिक ही तो करने हैं यार. अगर इससे आपको फ्री के मतलब 32 क्वेश्चंस, तो इससे पूरे 32 आने हैं आपके रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से. अगर इस 32 में से अगर एक एवरेज बच्चा है वो 25 भी कर लेगा तो यार अच्छा स्कोर है ना. अच्छा आपने काफ़ी उसमें से क्वेश्चंस कर दिए. सो ये जो 5-6 चीज़ें यही तो करनी है. तो पहला है एनालॉजी. जब हम एनालॉजी की बात करते हैं तो सपोज द क्वेश्चन कम्स लाइक कि जैसे ये कह देंगे कि पैलेस में किंग्स रहते हैं, पैलेस इज टू किंग्स, सो स्टेबल इज टू व्हाट? कि अगर पैलेस में किंग्स होते हैं, पैलेस का रिलेशन किंग्स से है, तो स्टेबल का रिलेशन किससे है? तो जैसे पैलेस में किंग्स रहते हैं, सिमिलरली स्टेबल इज द प्लेस वेयर अ हॉर्स लिव्स. तो यू नो दैट ओके हॉर्स इज द आंसर एंड यू विल टिक इट, राइट? यू विल पुट अ टिक देयर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑड वन आउट. यहाँ ये क्या करेंगे? दे विल गिव यू 4 टर्म्स, राइट, जो इंटरलिंक्ड है. तो उनमें से एक चीज ऐसी होगी विच इज नॉट इंटरलिंक्ड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप में से कुछ लोगों ने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा होगा, लाइक सम ऑफ यू, बट जैसे उनकी बुक्स हैं, ही इज अ वेरी फेमस राइटर, राइट? तो जो अगर जैसे ऑड वन आउट में क्या दे देंगे? पहला ऑप्शन दे देंगे हैमलेट, दूसरा दे देंगे मैकबेथ, तीसरा रोमियो एंड जूलियट एंड चौथा मिडनाइट्स चिल्ड्रन. तो 4 ऑप्शन दे दिए. नाउ यू नो दैट हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, दीज आर द बुक्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. बट मिडनाइट चिल्ड्रन, इट्स रिटन बाय सलमान रशिदी. सो यू कैन जस्ट टिक देयर दैट इट इज द ऑड वन आउट. सो
ये नहीं है कि ऑड वन आउट में इतना इन डेप्थ ही पूछा जाएगा, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं. I'll tell you certain books, just go through those books and you will do fine. Then we have picture series, right? तो एक सीरीज दे देंगे कि पहले मतलब एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, फिर दूसरी पिक्चर दे देंगे, तीसरी दे देंगे, एंड दे ऑल विल बी इंटरलिंक्ड टू वन अनदर. फिर ये फोर्थ पिक्चर ब्लैंक छोड़ देंगे. दे विल आस्क यू अब यहाँ क्या आना चाहिए. बहुत बेसिक होता है, एवरीवन कैन डू इट. देन वी हैव फिगर कंप्लीशन. तो सपोज एक बॉक्स बना देंगे, they will give you a box like this and they will divide it into 4 parts. and कोई भी ये अब जैसे ये क्या करेंगे, ऐसा दे देंगे, राइट, ऐसे. नाउ दे विल से कि यहाँ क्या आएगा, इस ब्लॉक में क्या आएगा. सो यू नो दैट ओके, आई नो मैंने जो बनाया वो स्क्वायर लग नहीं रहा, बट इट इज अ स्क्वायर. सो यू विल नो कि अच्छा इस बॉक्स में ऐसी कोई फिगर आएगी. सो यू कैन कंप्लीट दैट. सो एक डॉट फिगर भी होता है. तो दे विल आस्क यू सर्टेन डॉट्स क्वेश्चन. वो 5 क्वेश्चन होते हैं यार. ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं. दीज डॉट फिगर्स एंड फिगर कंप्लीशन, anyone with a little bit of effort can get all these 2 questions like 10 questions correct very easily. उसके बाद हमारा वेन डायग्राम है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं. मतलब ये सारे 5-5 क्वेश्चंस आते हैं. आपका एनालॉजी 5, ऑड वन आउट 5, पिक्चर सीरीज, एंड देन योर फिगर कंप्लीशन, डॉट फिगर्स, वेन डायग्राम, ऑल कम्स फॉर 5 मार्क्स. वेन डायग्राम 5 मार्क्स. लाइक आपको जैसे वो रिलेशन दे देते हैं कि एशिया में इंडिया है और इंडिया में हरियाणा है. सो यू हैव टू जस्ट put your tick here like this is the correct option. So this is all about reasoning and military aptitude. Believe me, with a little bit of effort, अगर आप particular topics कर लेंगे, for example just do figure completion with full heart, like wholeheartedly you have to do it. Then dot figures, then Venn diagram. यार ये फ्री के मार्क्स हैं, just fetch them, you can easily fetch them. थोड़ा सा प्रैक्टिस. और ये एनालॉजी, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज में आगे बताऊंगी कि what kind of questions do actually come. Now second is our mathematics. यार बहुत कंसाइज, बिल्कुल एकदम प्रिसाइज सिलेबस इन्होंने दे रखा है. You do not have to do everything, just do things which are going to come. So ये हमारा पहला हो गया नंबर सिस्टम, just do number system. एवरेज हो गया हमारा, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, SICI हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस, जहाँ ट्रेन्स एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे. यार हम एवरेज हम बचपन से पढ़ रहे हैं, राइट, पर मतलब एवरेज हम बचपन से पढ़ते हैं. परसेंटेज वी आर डूइंग सिंस चाइल्डहुड. देन प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SI सिंपल इंटरेस्ट, कितना आसान टॉपिक है. सो आई डिस्कस इट फर्दर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू डू इट. बट यू हैव टू एंश्योर इवन कि आप ये जो टॉपिक्स है ना, इनको बढ़िया से करो. नो मैटर आप कोई भी बुक लेते हो, इट डजेंट मैटर. इट्स हाउ मच यू कैन प्रैक्टिस एंड जस्ट स्टिक टू अ पर्टिकुलर टॉपिक. डोंट गो इनटू too deep questions, like into much depth. Don't go there. Just practice average questions. Suppose if 18 questions are going to be asked from your mathematics, no, then 10 questions are going to be very very easy. Some people are saying that that AFCAT is gaming up their level right now. थोड़ा level जा रहा है maths का, but even out of 18, average student can do 10 questions with sincere effort and diligence. I can promise you that. Just stick to the topic, practice. I'll tell you the books from which I practice, and there was no need to take coaching, believe me. Now let's come to English. Well, they also say that English का भी काफ़ी मतलब कि आपके 25 क्वेश्चंस हैं यार इंग्लिश के भी. तो क्या क्या पार्ट है? सो फर्स्ट इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, देन सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस. Sorry, it's error detection, not deduction. I think I made a mistake here. Sorry. We have to detect the error here. I have to write detection, error detection, and fill in the blanks. So reading comprehension, यार देखो, synonym, antonym is such, कहीं से भी आ सकता है, right? कहीं से भी पूछा जा सकता है. You cannot say कि अच्छा यही आएगा. So synonym, antonym पे आपके पास अच्छी आपकी vocab होनी चाहिए.
बाय रीडिंग न्यूज़पेपर आप कोई मतलब अपनी कोई पर्सनल डायरी बना लो जहाँ वर्ड्स लिखते रहो, और इधर आई टेल यू द बुक्स फ्रॉम विच आई लर्न वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स। बट मैंने तो अपनी एक पर्टिकुलर डायरी भी बना रखी थी जहाँ मैं अपनी वोकैब नोट डाउन करती थी। रही बात रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, यार दिस इज़ वेरी इजी। लाइक कोई भी बंदा विद एवरेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, इफ they can very easily get 5 questions from here। ये पांच questions आपके फ्री है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। जस्ट अगर किसी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जस्ट कोई स्टोरी बुक ले लो यार, बिल्कुल बच्चों के लेवल की, लाइक नॉट बच्चों के, या लाइक 9-10th, रोज एक स्टोरी पढ़ लो। इवन विद दैट यू वुड बी एबल टू गेट 5 questions here। देन सिनोनिम एंटोनिम्स, आई टेल यू द बुक कहाँ से करना है, मतलब वो आप करना अपनी वोकैब को, यू हैव टू अपडेट। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैंने तो यार उसी बुक से किए थे, आई टेल यू। और एरर डिटेक्शन, सॉरी फॉर डिड्यूक्शन वंस अगेन, एरर डिटेक्शन में यार वो भी यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। प्लस लाइक ये जो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जब चैप्टर्स यू विल स्टार्ट रीडिंग ना, यू विल नोटिस दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका एरर डिटेक्शन अपने आप, व्हेन यू विल रीड दैट सेंटेंस ना, आप अपने आप रुक जाओगे गलत जगह पे। इफ यू हैव एनफ रीडिंग प्रैक्टिस, यार देखो, don't somewhere you have to stick with the topics, but for subjects like English be more prepared, like put in a little bit मोर एफर्ट। तो आप जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, आपकी रीडिंग हैबिट हो जाएगी, एरर डिटेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक दैट पर्टिकुलर सेंटेंस ना, जो गलत होगा ना, आपको खुद ही वो अजीब लगेगा, इवन इफ यू डोंट नो द रूल्स। आई एम नॉट सेइंग जस्ट go and cram all the grammar rules, I'm not saying that, you will yourself feel the difference। So even if you want to prepare for AFCAT, you want to prepare for CDS, और CDS वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है यार। I would suggest just make reading your habit, like if you want to clear this exam, especially CDS, for that reading should be a part and parcel of your life, believe me। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे मोटे बहुत इजी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। इवन यहाँ से भी आप एक नॉर्मल एवरेज बंदा 3-4 क्वेश्चन फेच कर सकता है। सो रीड लाइक 5, इवन अगर मैं ये भी मान लूँ कि सिनोनिम एंटोनिम किसी की वोकैब बहुत पुअर है, बहुत परेशान है वो, तो यार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ले सकते हो ना। एरर डिटेक्शन में 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो ना, फिल इन द ब्लैंक्स में भी 3 कर लोगे ना, तो 10 क्वेश्चंस भी यहाँ से हो गए, बहुत है यार अगर आपको स्टार्टिंग ही करनी है तो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ रुक जाओ, बट 10 क्वेश्चंस तो यहाँ से बहुत कोई वेरी इजीली कर सकता है। प्लस एग्जाम दे के डीमोटिवेट मत होना कि मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा या कर पा रही। इफ़ द कट ऑफ इज 50%, 50 to 55%, then why are you worrying? Even आपको आधा पेपर भी ना आता हो, so don't lose that confidence। Now come the general awareness section। Sorry for my bad throat। Now history। So history का section होता है यार, just do it ना। मॉडर्न इंडिया आता है, गांधीयन ईरा, मेन गांधीयन ईरा आता है आपका, थोड़ा कांग्रेस से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट कि आपको गांधी जी से रिलेटेड सब पता होना चाहिए, आपको थोड़ा कांग्रेस की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस इसमें एक और चीज़ जो ये पूछते हैं, दैट इज़ योर डायनेस्टीज। सो लाइक गो फॉर द डायनेस्टीज की, मतलब किस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। सपोज आई एम नॉट सेइंग कि पूरा आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लो यार, आई एम जस्ट सेइंग कि गो फॉर डायनेस्टी। आई एम सॉरी आई कैन नॉट राइट वेरी लाइक बहुत धीरे धीरे लिख पा रही हूँ राइट एट प्रेजेंट में, मेरी हैबिट नहीं है, बट येस आई विल श्योरली इम्प्रूव विद टाइम। तो डायनेस्टीज हैं, गो एंड फाइंड आउट। दे एक पेपर लो यार, डोंट गेट स्केयर्ड कि आपने ल्यूसेंट उठा ली और वहाँ मतलब एंशियंट हिस्ट्री खोल के एंड यू आर टेरिफाइड नाउ कि इतना रटना है। डोंट वरी, जस्ट नोट डाउन एवरी डायनेस्टी, उसके नीचे उनके फाउंडर लिख दो और वही फाउंडर पेपर में आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आ जाते हैं। तो वी हैव टू सी इनपुट आउटपुट रेशियो। यू नहीं कि आप 50 पेज पढ़ोगे उससे एक क्वेश्चन आए, जस्ट उतना पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो कि उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो क्वेश्चंस बनने की। ज्योग्राफी जो है यार ये थोड़ा बेसिक लेवल की आती है, सो थोड़ा मेरे को तो लगता था, मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी इनिशियली अपनी सीडीएस की प्रेप में, सो आई थिंक दैट हेल्प मी। आई डिड नॉट हैव टू स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर ज्योग्राफी। मेरे लिए तो मैंने जब सीडीएस की प्रिपरेशन की थी तो 6 to 10th आई रेड एनसीईआरटीज और दैट वाज सफिशिएंट, दैट वाज
बहुत ज़्यादा, उससे एक्स्ट्रा मुझे कभी एफकैट के लिए ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉलिटी यार, पॉलिटी के लिए मैंने उस टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, तो बट बिलीव मी यू डोंट हैव टू स्टडी पॉलिटी लक्ष्मीकांत फॉर एफकैट। तो एफकैट के लिए पॉलिटी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कोई भी बेसिक सी बुक उठाओ, उसमें पॉलिटी के सिंपल टॉपिक्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, आई टेल यू लेटर कि किस तरह के टॉपिक्स करने हैं, इट वुड बी सफिशिएंट। नाउ जनरल साइंस, सिंस मैं तो आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट, तो साइंस तो हमेशा से आई हैव बीन इन टच विद साइंस, तो जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैं इजीली साइंस के कर लेती थी। बट येस, सीडीएस के लिए मैंने अलॉन्ग विद एनसीईआरटीज मैंने एक पूरी रीडिंग ली थी ल्यूसेंट की। रीडिंग क्या यार, थोड़ा रट्टा ही मारा था, ल्यूसेंट का किया था। नाउ अवार्ड्स पेपर में आते हैं, गो थ्रू अवार्ड्स की तो एक लिस्ट बनाते जाओ साथ के साथ कि अच्छा जिसको मिल रहा है, सो जस्ट जॉट दैट डाउन। देन स्पोर्ट्स का, आपका स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये फ्री के मतलब लिटरली ये फ्री के 3-4 क्वेश्चंस तो यहीं से आपके आ जाएंगे। ये पूछ लेते हैं कि यार कोई भी स्पोर्ट दे देंगे कि ये किस ट्रॉफी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ट्रॉफी का पूछ लेंगे आपसे। दूसरा आपसे कोई टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे कि ये चीज़ हम किस स्पोर्ट में यूज़ करते हैं, खो खो में, बैडमिंटन में, किस में, ऐसे ही। और उसके बाद कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, ये सब। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट इज बुक्स एंड ऑथर्स। Here I have to write authors, so books and authors they can ask. So books में I think मेरे को तो लगता है यार, what I have seen is that they love William Shakespeare. तो William Shakespeare and सलमान रश्दी। So William Shakespeare और सलमान रश्दी को तो एक बार पढ़ ही लेना, उनकी जितने भी बुक्स हैं। प्लस हमारे जो मेन क्रिकेटर्स हैं, कोई प्लेयर है उसने लिख दी, इवन दैट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि व्हाट द एग्जाम पैटर्न इज गोइंग टू बी। सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत जीनियस बच्चा ही है जो एग्जाम क्लियर करता है, यार देखो ना 300 मार्क्स का पेपर है, 150 इज द कट ऑफ, 50% लाने हैं। चलो 50 पे मत रहो यार इतना, बट थोड़ा सेफ जोन में आई विल से 60%, 55 लगा लो, 55% पेपर सॉल्व करना है। सो व्हाट्स देयर टू फेयर, जस्ट आप बहुत इजीली कर सकते हो। एज आई शोड यू दैट ये हमारे जो 4 सेक्शन है, मैंने मिनिमम क्वेश्चन, देखो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कर सकता है हर कोई, जनरल अवेयरनेस के विद सिंसियर एफर्ट 10 कोई भी मार लेगा और 40 कर लेगा। 40 + 10 + 10 इट इज 60, 60 × 3 180। विद लाइक आप थोड़ा सा भी अगर विद अ लिटिल बिट ऑफ सिंसियरिटी एंड डिलीजेंस यू विल डू इट ना, 180 मार्क्स यू कैन वेरी इजीली सिक्योर। Okay, so don't get scared. Next time I will definitely come with the books which I read at that time, and I think मैंने तो सिर्फ 3-4 बुक्स ही कंसल्ट की थी, उससे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बट मैंने क्या किया था, I went through multiple revisions. So thank you so much for watching, and I'll come with my book list and I'll tell you the pages from which I read particular topic. I think that this might help you. Thank you.